Hello, good afternoon to all. I am Suman Bharadwaj, economics teacher. Today we will study the third chapter of statics, census and sample method of collection of data, part 3. In first part, we have completed about the sample census method. Census means when we are studying about the data of total population of the countries or of the universe, and sample methods means from the total population few items are selected for study purpose, and on that result is declared by considering the whole population of the world or particular country. This short review we have done concerning to census and sample. Now we'll study about the methods of sampling. Okay, sampling first. Sample means out of total few items selected for study purpose. For study purpose. Purpose means uddesh. In Hindi we say. Now today we will study about the random sampling. रैंडम सैम्पलिंग मीन्स किसी का भी चांस कभी भी आ सकता है बिना बताए. इंफॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन दैट यू विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल एनी टाइम. ओके, it is a kind of competition. In simple words we can understand. Okay, it is a sign. There winner will also declare if someone got a chance of selection. Random sampling in simple words means getting chance of selection. गेटिंग चांस ऑफ सलेक्शन मतलब मौका मिल गया है चुनने का. ओके, नाउ वील स्टडी अबाउट दिस मेथड, सैंपल मेथड. Your sample method we will studied about random sampling. Your random sampling means items have been selected for getting a chance of selection. In simple words you can understand getting a chance of selection. Now first method we will studied about the random sampling. Random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has an equal chance of being selected in the sample. मतलब सभी को चांस मिल रहा है यूनिवर्स में से किसी का भी नंबर आ सकता है सिलेक्शन में और जो कि सैंपल कंसीडर कर लिया जाएगा. इन अदर वर्ड्स there is an equal probability for every item of the universe being selected in the sample. What does it mean? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी पीपुल हैं उनको चांस मिल रहा है सिलेक्शन करने का. There is no doubt. Now next,
Which of the various items of the universe would get selected in the sample is beyond the control of the investigators. इन्वेस्टिगेटर्स को खुद भी नहीं पता होता है कि किसका चांस आ सकता है सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड द कंट्रोल मीन्स उसकी समझ से बाहर होता है, ऊपर होता है उसके कंट्रोल से. एनीवन कैन गेट अ चांस ऑफ सिलेक्शन. The selection is left entirely to the chance of factors. This method is used particularly when various items of the universe are homogeneous. Homogeneous का मतलब क्या होता है कि सेम चांस है. पीपुल हैं इंडिया के, ओके. So all people will be considered same. Identical means same. मैन है तो सारे मैन्स एक जैसे होंगे, ओके. देयर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ मैचिंग टू विद ईच अदर. अगर हम चिल्ड्रन काउंट कर रहे हैं तो चिल्ड्रन सभी एक जैसे होंगे, सेम ग्रुप के. मैन है तो मैन भी एक जैसे होंगे, वुमेन एक जैसी होंगी, ओके. दिस इज द होमोजीनियस, ओके. दिस मेथड इज impartial and economical. ठीक है. दिस मेथड इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल मीन्स किसी का भी चांस आ सकता है सिलेक्शन करने के लिए. इकोनॉमिकल मीन्स रिलेटेड टू द मनी, ओके. मनी इज स्पेंड, ओके. पैसा खर्च किया जाएगा इस रैंडम सैम्पलिंग को के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए. Now random sampling may be done in any of the following ways. किसी भी तरीके से ये random sampling की जा सकती है. Now we'll study about the random sampling से हम क्या समझे कि anyone can got a chance of selection. Anyone can got a chance of selection. Chance of selection. Okay. On that base result will be declared, okay. Now next we'll study in, okay, in random sampling there are two methods. First method is the lottery method and second method is the table of random numbers, right? So first we study about this lottery method. ओके. लॉटरी सभी जानते हैं, ठीक है. सभी कूपन्स वगैरह खरीदते हैं. किसी का भी चांस आ सकता है. सारी स्लिप्स मिक्सअप कर ली. मिक्सअप करने से अब सारी स्लिप्स को खूब हिलाया डुलाने के बाद उसमें से किसी एक स्लिप को उठा लिया जाता है और उस स्लिप को खोल के देखा जाता है और फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दिस पर्सन इज द विनर इन द लॉटरी. ये विजेता हैं लॉटरी के. फिर उसको कोई प्राइज दिया जाता है, ओके. प्राइज इज गिवन टू हिम. इट मे बी इन कैश ऑल्सो or it may be any product also, right. कोई सामान भी हो सकता है, नगद रुपया भी हो सकता है. Now in this method paper slips are made for each item of the universe. ठीक है. हर व्यक्ति के लिए एक स्लिप बनाई जाती है. वो उस स्लिप को उसके अंदर डालेगा एक बॉक्स के अंदर. Then impartially some of the slips are drawn to form a sample of the universe, okay. फिर सारी स्लिप्स हो जाएंगी. सारे पीपल्स की स्लिप्स उस बॉक्स के अंदर कंटेन की गई हैं. अब उसमें से किसी एक को, दो को या तीन को डिक्लेयर किया जाएगा. These are the winners of this lottery. I hope children you are understanding very nicely.
If you don't understand in regular class, we'll discuss. Okay, please ask me, carry on. Now, next method is the table of random numbers. Okay, अभी हम tables बनाएंगे. टेबल हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, right? In this way we make the tables, right? Okay, tables of random numbers. Some statisticians have prepared a set of tables called tables of random numbers. एक टेबल बनाया जाएगा रैंडम नंबर्स का. A sample is framed with the reference to these table. एक सैम्पल फ्रेम किया जाएगा इन टेबल्स के अंदर. Of all these tables, triplets table is most widely used. Okay, ट्रिपलेट्स टेबल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. यूजिंग 41,600 फिगर्स. इतने फिगर्स इसमें रहेंगे आपके, मतलब मोर देन 5 फिगर्स. ओके, बिकॉज ट्रिपलेट्स हैज इन्वॉल्व्स 10,400 numbers compressing for the each units. ओके, इतनी जिसकी 50,000 10,000 के इसके अंदर आती हैं आपके ट्रिपलेट्स के अंदर. 10,000 से अबव रहेगा. For the use of this method, all items of the universe are first arranged in order. तो हमें क्या करेंगे, इस ट्रिपलेट्स मेथड्स में जितने भी आइटम्स हैं उनको अरेंज किया जाएगा. Then using triplets table, the required number of items are selected. फिर उसमें आइटम्स को सेलेक्ट किया जाएगा as are needed for a sample, जो कि हमें सैंपल के लिए ज़रूरत है. तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि एक टेबल बनाया जाएगा बेटा. ठीक है, इस टेबल के अंदर 10,000 फिगर हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 10 से 40,000 या 50,000 के बीच में फिगर्स कंसीडर किए जाएंगे और फिर इनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा. ओके, दिस इज द ट्रिपलेट. Now we will study about the merits. This is lottery method. लॉटरी का स्लिप्स में से होगा, इसमें फिगर्स में से होगा. Only this thing you have to remember. Now we'll study about the merits of this random sampling. Okay, merits means I told you advantage. Okay, खूबियाँ. फ्रॉम द पॉइंट में बी नोटेड ऑन द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. हमने क्या अंडरस्टैंड किया? दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा कि नहीं अरे ये मेरा मिलने वाला है इसी को सेलेक्ट किया जाए. किसी का भी चांस आ सकता है. ठीक है, एनी वन कैन बी सेलेक्टेड. everyone got the chance of being selection. Sorry. Each and every item of the universe stands equal chance of being selected. Okay, every item got a chance of being selection. किसी का भी नंबर आ सकता है सिलेक्शन के लिए, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं बेटा. The universe get fairly represented by the sample. इसमें फेयर सिलेक्शन है. What? फेयर सिलेक्शन है, किसी का पक्षपात नहीं है कि ये मेरा रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है या मेरी फैमिली रिलेशन है इसे तो इसी को सेलेक्ट किया जाए. नो, फेयर सिलेक्शन हैज़ बीन डन. ओके, नाउ फोर्थ इज पॉइंट. दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. दिस इज
सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी का भी चांस आ सकता है, बहुत सारे पीपुल हैं ओके इंडिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ओके। सभी एक जैसे हैं सभी के लिए, तो सभी को चांस देना चाहिए ना सिलेक्शन करने के लिए। गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ we have studied about the random sampling ओके। एंड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने 2 मेथड्स पढ़े। फर्स्ट मेथड इज लॉटरी मेथड एंड सेकंड मेथड इज योर tables of random numbers. We are doing little bit revision along with this topic carried forward. Now we will study about the demerits of random sampling. Demerits. However, there are 2 notable demerits of this method. These are as under. ओके अभी हम डीमेरिट्स कमियाँ, डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेज भी बोलते हैं हम इसको, ड्रॉबैक भी बोलते हैं, कमी ड्रॉबैक, राइट बेटा। फर्स्ट ड्रॉबैक इज दिस मेथड डज नॉट गारंटी proportionate representation of different items of the यूनिवर्स। इसमें कोई प्रपोर्शन नहीं है, प्रपोर्शनेट मीन्स कोई रेशियो नहीं है, नो रेशियो, कोई प्रपोर्शन नहीं है कि इतना 70% ये रहेगा और 30% ये रहेगा, राइट, नो प्रपोर्शन। सेकेंड पॉइंट इज random sampling does not give weightage to a certain important items in the universe। इसमें कोई वेटेज नहीं दी जाती है। वेटेज का मतलब होता है कि इसका 10% है, इसका 20% है, इसका 30% है, दिस इज वेटेज, राइट बेटा। नो वेटेज, हमें कमियां शो करनी है तो कमियां किसी न किसी तरीके से तो हम शो ही करेंगे। वी विल शो drawbacks by representing any negative points related to this method. Now next is the difference between the random sampling and your haphazard sampling, ठीक है। This is your random sampling and haphazard sampling. Just now we have studied about the random sampling. Every item got first we studied about the random sampling, first point. Okay, every item got a chance of selection. Okay, every item got a chance of selection। किसी का भी नंबर आ सकता है चुनने के लिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सी, अब हम बुक की लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सबको चांस देना है सिलेक्शन का। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ हैप्सर्ड सैम्पलिंग। हैप्सर्ड सैम्पलिंग का मतलब क्या है, कोई प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, जिग-जैग वे में है, ठीक है। हैप्सर्ड सैम्पलिंग इज नॉट अ अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ, इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, प्रॉपरली वर्क करेगा ये। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन्वॉल्व इन रैंडम सैम्पलिंग, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन हैप्सर्ड्स। उल्टा सीधा काम चल रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, वी स्टडीड अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग। सी, random sampling allows every item an equal chance of
for equal probability of being selected in the sample. सभी को चांस दिया जा रहा है सिलेक्शन का, रैंडम सैम्पलिंग का, सभी को चांस मिल रहा है सिलेक्शन का यूनिवर्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पीपल को ही चांस मिलेगा, फॉरेन कंट्रीज़ के पीपल को भी चांस मिल रहा है और इंडिया के पीपल को भी चांस मिल रहा है सिलेक्शन का। यूनिवर्स मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात हो रही है। ओके, द सिलेक्शन इज डन in the universe, so every people is getting a chance of being selection in the universe. Now second point is your beta Haphazard sampling. हैप्सर्ड सैम्पलिंग मैंने बताया इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिगजैग वे में काम हो रहा है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? हैप्सर्ड सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ एवरी आइटम एन इक्वल चांस और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्शन इन द आइटम। इसमें कुछ को दिया जाएगा चांस, सभी को नहीं दिया जाए। हेयर क्लियरली रिटन ओवर हियर, हैप्सर्ड सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ एवरी आइटम एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। फी को ही चांस दिया जाएगा, ठीक है, पार्शियलिटी हो गई। इसमें क्या, कोई पार्शियलिटी नहीं है, हेयर पार्शियलिटी इज डन, ठीक है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, यहाँ भेदभाव किया गया है। मीन पार्शियलिटी इज डन in selecting the items considered as a sample. Now next, random sampling and exit poll. Exit poll का मतलब आप जानते ही हैं। exit poll का मतलब होता है बेटा, जैसे आपके इलेक्शंस हो रहे हैं, ओके, इन इलेक्शंस व्हाट हैपन, एवरी पीपल इज गिविंग वोट दे रहे हैं, ओके, वोट दिया सभी ने, वोट सभी ने दिया, उसमें से जिसने सबको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है एज अ मिनिस्टर और एज अ पीएम, राइट। जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही डिक्लेयर किया जाएगा एज अ पीएम ऑफ द कंट्री, राइट। So PM बनना is not a easy task, okay. Our generation, what they'll think how much work the ministers done for the society, के लिए कितना काम किया है। So if society is happy, then again same minister will be selected in the future, okay। जनता खुश तो क्या करेगी, दोबारा से वो अपना वैल्यूएबल उसी लीडर को देगी, उसी पार्टी को देगी और जिताने की कोशिश करेगी। बट इन केस people is not happy with the existing leader, then the people will try to change them. They will not give their valuable vote to that existing party, then in future they'll give their valuable vote to the other party. Now see, simple example of exit poll I have given you. Exit poll is an interesting example of random sampling, ठीक है। What does it mean? It means a small percentage of people exiting the poll booths are contacted and asked whom they voted. From the sample of information thus collected, a prediction is made out with the victory chances of different candidates contesting elections. सभी को चांस दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है चुनाव में, तो क्या हो गई आपकी रैंडम सैम्पलिंग, ओके। अगर हम क्या कह रहे हैं, पहले पूछ लिया जाता है किसको वोट दोगे, कौन सी पार्टी को दोगे, और उसका फेवर कर दिया तो कौन सी, क्या हो गया, हैप्सर्ड सैम्पलिंग,
right? Now, thank you. I hope you understand the difference of random sampling and your haphazard sampling. Thank you.